بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اصحاب کہف کون تھے، کتنے تھے اور وہ غار میں کیوں چھپے تھے اور ان کے ساتھ کون سا جانور تھا؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنے عرصے سلائے رکھا؟ یہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے اور اس حوالے سے مکمل سورت قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ اس سورت کا نام سورہ کہف اس غار کی نسبت سے ہے جس میں یہ اصحاب چھپے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی غار میں سلائے رکھا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو اصحاب کہف کا مکمل واقعہ بتائیں گے۔ ویڈیو دلچسپ ہونے کے ساتھ ایمان افروز بھی ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو پورا آخر تک سنیں۔ دوستو، حافظ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورہ کہف کا شان نزول نقل کیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے کچھ سرداروں نے 2 آدمی مدینہ منورہ کے یہودی علماء کے پاس یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجے کہ تورات اور انجیل کے یہ علماء آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہودی علماء نے ان سے کہا کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیجیے، اگر ان کا صحیح جواب دے دے تو سمجھ لینا کہ وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہے، اور اگر صحیح جواب نہ دے سکے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا نبوت کا کوئی دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ دوستو، وہ شخص کا پہلا سوال یہ تھا کہ ان نوجوانوں کا وہ عجیب واقعہ بیان کرے جو کسی زمانے میں شرک سے بچنے کے لیے اپنے شہر سے نکل کر کسی غار میں چھپ گئے تھے۔ دوسرا، اس شخص کا حال بتائے جس نے مشرق سے مغرب تک کا پورا سفر کیا تھا۔ تیسرا، ان سے پوچھے کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ یہ دونوں شخص مکہ مکرمہ واپس آئے اور اپنی برادری کے لوگوں کو ساتھ لے کر انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ 3 سوال پوچھے۔ پہلے 2 سوالات کے جواب میں یہ سورت یعنی سورہ کہف نازل ہوئی۔ اس میں غار میں چھپنے والے نوجوانوں کا واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے، انہی کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ کہف عربی غار کو کہتے ہیں۔ اصحاب کہف کے معنی ہوا غار والے، اور اسی غار کے نام پر سورت کو سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہایت بدتر ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ خنشوس ان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ وہ تو اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا تھا اس کو قتل کر ڈالتا تھا۔ اصحاب کہف شہر افسوس سے سرفا تھے، 2 بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے ایک پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ لیے اور سو گئے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کرایا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہے تو وہ بے حد ناراض ہوا اور غصے میں آ کر یہ حکم دے دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ لیکن دوستو، روایت بتاتی ہے کہ دقیانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام دیا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر کندہ کر کے تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا، اور اس طرح ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کر دی۔ کچھ دنوں بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہی، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بیدروش تھا تخت نشین ہوا، جس نے
68 साल तक बहुत शान व शौकत के साथ हुकूमत की। उसके दौर में मजहबी फ़िरका बंदी शुरू हो गई और बाज़ लोग मरने के बाद उठने और क़यामत का इनकार करने लगे। कौम का ये हाल देखकर बादशाह रंज व गम में डूब गया और वह तन्हाई में एक मकान के अंदर बंद होकर खुदावंद कुद्दूस के दरबार में निहायत बेकरारी के साथ गिरी व जारी करके दुआएं मांगने लगा। या अल्लाह अज़्ज़-व-जल कोई ऐसी निशानी ज़ाहिर फरमा दे ताकि लोगों को मरने के बाद जिंदा होकर उठने और क़यामत का यकीन हो जाए। बादशाह की ये दुआ कबूल हो गई और अचानक बकरियों के एक चरवाहे ने अपनी बकरियों को ठहराने के लिए उसी गार को मुंतखब किया और दीवार को गिरा दिया। दीवार गिराते ही लोगों पर ऐसी हैबत व दहशत सवार हो गई कि दीवार गिराने वाले कांपते वहां से भाग गए और असहाबे कहफ अल्लाह के हुक्म से अपनी नींद से बेदार होकर उठ बैठे और एक दूसरे से सलामो कलाम में मशगूल हो गए और नमाज भी अदा कर ली। जब उन लोगों को भूख लगी तो उन लोगों ने अपने एक साथी से यमलिखा से कहा कि तुम बाजार जाकर कुछ खाना लाओ और निहायत खामोशी से ये भी मालूम करो कि दकियानूस हम लोगों के बारे में क्या इरादा रखता है। यमलिखा गार से निकलकर बाजार गए और ये देखकर हैरान रह गए कि शहर में हर तरफ दीन ईसवी का चर्चा है और लोग ऐलानिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं। यमलिखा ये मंजर देखकर हैरत ज़दा हो गए कि इलाही ये माजरा क्या है। इस शहर में तो ईमान का नाम लेना भी जुर्म था। आज की इनकलाब कहाँ से और क्यों कर आ गया। फिर एक नानबाई की दुकान पर खाना लेने गए और दकियानूसी ज़माने का रुपया दुकानदार को दिया जिसका चलन बंद हो चुका था, बल्कि कोई इस सिक्के को देखने वाला भी नहीं रह गया था। दुकानदार को सुबह हुआ कि शायद उस शख्स को कोई पुराना खजाना मिल गया है। चुनांचे दुकानदार ने उनको हुक्काम के सुपुर्द कर दिया और हुक्काम ने उनसे खजाने के बारे में पूछताछ शुरू कर दी और कहा, बताओ खजाना कहाँ है। यमलिखा ने कहा कि कोई खजाना नहीं है, ये हमारा ही रुपया है। हुक्काम ने कहा कि हम किस तरह मान लें कि ये तुम्हारा रुपया है। ये सिक्का 300 साल पुराना है और इतने सालों गुजर गए कि सिक्के का चलन बंद हो गया और तुम अभी जवान हो, लिहाजा साफ साफ बताओ कि ये मसला हल हो जाए। ये सुनकर यमलिखा ने कहा कि तुम लोग ये बताओ कि दकियानूस बादशाह का क्या हाल है। हुक्काम ने कहा कि आज रोए ज़मीन पर उस नाम का कोई बादशाह नहीं है। हाँ, सैकड़ों बरस गुजरे इस नाम का एक बेईमान बादशाह गुजरा है जो बुत परस्त था। यमलिका ने कहा, अभी कल ही तो हम लोग उसके खौफ से अपने ईमान और जान को बचाकर भाग गए। मेरे साथी करीब के गार में मौजूद हैं। तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को उनसे मिला दूँ। चुनांचे हुक्काम और उमाए दीन शहर कसीर तादाद में उस गार के पास पहुँचे। असहाबे कहफ यमलिखा के इंतज़ार में थे। जब उनकी वापसी में देर हुई तो उन लोगों ने ख्याल कर लिया कि शायद यमलिखा गिरफ्तार हो गए और जब गार के मुंह पर बहुत से आदमियों का शोर गूंजा तो उन लोगों ने सुना तो समझ बैठे कि गालिब दकियानूस की फ़ौज हमारी गिरफ्तारी के लिए आ पहुंची है। तो ये लोग निहायत इखलास के साथ ज़िक्र इलाही और तौबा इस्तग़फ़ार में मशगूल हो गए। हुक्काम ने गार पर पहुंचकर ताबे का संदूक बरामद किया और उसके अंदर से तख्ती निकाल कर पढ़ा और उस तख्ती पर असहाबे कहफ नाम लिखा गया था और ये भी तहरीर था कि एक मोमिनों की जमात अपने दीन की हिफाजत के लिए दकियानूस बादशाह के खौफ से इस गार में छुपी हुई है। तो दकियानूस ने खबर पाकर एक दीवार से उन लोगों को गार में बंद कर दिया। हम ये हाल इसलिए लिखते हैं कि जब भी ये गार खुले तो लोग असहाबे कहफ के हाल पर हो जाए। हुक्काम तख्ती पर इबारत पढ़कर हैरान रह गए और उन लोगों ने
बादशाह बैदरुश को इस वाक़ये की इत्तला दी। फ़ौरन ही बैदरुश बादशाह ने अपने साथियों और शहर के लोगों को साथ लेकर गार के पास पहुंचा और असहाबे कहफ ने गार से निकलकर बादशाह से मुआनका किया और अपनी सारी बातें बयान की। बैदरुश बादशाह सजदे में गिरकर खुदावंद कुद्दूस का शुक्र अदा करने लगा कि मेरी दुआ कबूल हो गई और अल्लाह ताला ने ऐसी निशानी जाहिर कर दी कि जिससे मौत के बाद जिंदा होकर उठने का हर शख्स को यकीन हो जाए। रिवायत में आता है कि असहाब कहफ बादशाह को दुआएं देने लगे कि अल्लाह तेरी बादशाही की हिफाजत फरमाए, अब हम तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। फिर असहाब कहफ ने अस्सलामु अलैकुम कहा और गार के अंदर चले गए और सो गए और उसी हालत में अल्लाह ताला ने उन लोगों को वफ़ात दे दी। बादशाह बैदरुश ने साल उस लकड़ी का एक संदूक बनवाकर असहाबे कहफ के मुक़द्दस लाशों को उसमें रखवाया और अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ को ऐसा रूप लोगों के दिलों में पैदा कर दिया कि किसी की ये मजाल नहीं कि गार के मुंह तक जा सके। इस तरह असहाबे कहफ के लाशों की हिफाजत का अल्लाह ताला ने सामान कर दिया। फिर बैदरुश बादशाह ने गार के मुंह पर एक मस्जिद बनवा दी कि सालाना एक दिन मुकर्रर कर दिया। तमाम शहर वाले उस दिन ईद की तरह ज़ियारत के लिए आया करे। रिवायत में आता है कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं उन्हीं कम लोगों में से हूँ जो असहाबे कहफ की तादाद को जानते हैं। फिर आपने फरमाया कि असहाबे कहफ की तादाद 7 है और 8वां उनका कुत्ता है। दोस्तों, असहाबे कहफ अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से एक निशानी है, लिहाजा हमें आखिरत पर ईमान रखना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा किया और हम मरेंगे और फिर अल्लाह तबारक व तआला हमें क़यामत के दिन फिर से उठाएंगे। ये था असहाबे कहफ का पूरा वाक़या। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को दीन के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू।